شروع کرتا ہوں یشوع مسیح کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں خدمت کرنے والے تمام بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے سلام، شالوم، جے مسیح کی۔ تو میرے دوستو، اس بات کو آپ مکمل طور پہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی کلیسیا میں، اپنے لوگوں میں بتا سکتے ہیں، پرچار کر سکتے ہیں، منادی کر سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہفتے والے دن تیسرے دن جی اٹھا، اور مریم اور ماں مریم اور دوسری عورتیں یہ اتوار کی صبح، ہفتے کے پہلے دن اتوار کی صبح وہ باغ میں گئیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب ان کو پتا چل گیا کہ یہی یسوع ہے، تو یسوع نے ان کو سیدھی یہ ایک بات کہی کہ جاؤ جا کے میرے بھائیوں کو بتاؤ، کیونکہ ہفتے کا دن جی اٹھنے کا ہے اور اتوار کا دن بتانے کا دن ہے، منادی کا دن ہے، ایونجلزم کا دن ہے، گواہی کا دن ہے۔ اور ان کو کہا گیا کہ میں انہیں بھائیوں کو بتا دو کہ میں انہیں گلیل میں ملوں گا۔ تو اب آپ اس بات کو دیکھیے کہ جہاں پر وہ جمع تھے وہاں پر یسوع مسیح ان کے کمرے میں آ گیا۔ عورتوں کو بتایا گیا کہ گواہی دیں، کیونکہ بعض عورتیں اپنے آپ کو پاسٹر کہتی ہیں۔ پاسٹر کا مطلب ہوتا ہے چرواہا، ڈومنی، کنٹرول کرنے والا، خوراک دینے والا، سنبھالنے والا، درندوں کے ساتھ لڑنے والا، دشمنوں کے ساتھ لڑنے والا، چوروں کے ساتھ لڑنے والا۔ تو مسیح نے عورت کو کسی جگہ پر بھی پاسٹر نہیں کہا۔ عورت کسی جگہ پر بھی ازروئے بائبل پاسٹر نہیں ہو سکتی۔ وہ ایونجلسٹ ہو سکتی ہے، وہ نبیہ ہو سکتی ہے، وہ ایک طرح سے ٹیچر ہو سکتی ہے، وہ کلیسیا انتظام میں مشیر ہو سکتی ہے، نصیحت کرنے والی ہو سکتی ہے، لیکن پاسٹر نہیں۔ کیونکہ اگر آپ اس کا لیول دیکھ لیں تو عورت کئی طرح سے بانڈ ہے، بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی باڈی کے ساتھ۔ کیونکہ عورت کو ایک ہفتے میں ہر مہینے جسمانی طور پر اس کی ناپاکی کی حالت ہوتی ہے۔ ان دنوں میں وہ کیا کسی کا جنازہ پڑھے گی، اور کیا کسی کو بپتسمہ دے گی، کیا کسی کی بدروحیں نکالے گی، کیا کسی کے لیے وہ ابلیس کا فیس کرے گی۔ تو اس لیے ازروئے بائبل عورت ان دنوں میں معذور ہے، وہ نہیں یہ کام کر سکتی۔ اور جو چرواہا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے وقت بے وقت مستعد رہ، ہر وقت، یعنی کہ صبح ہو، شام ہو، رات ہو، گرمی ہو، سردی ہو، کہ جیسا بھی موقع ہو، چرواہے کو اپنی بھیڑوں کی رکھوالی کے لیے کھڑے رہنا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ہر عورت اپنے ساتھ بشپ بھی لکھ رہی ہے، پاسٹر بھی لکھ رہی ہے، اس کا ہسبینڈ پاسٹر ہے تو وہ بھی پاسٹر ہے۔ بھائی، پاسٹر کی تو بیوی ہے، وہ پاسٹر نہیں ہے۔ ہاں، کیا اس پر اتنی تسلی نہیں کہ عورت بائبل ٹیچر ہو سکتی ہے؟ یہ کافی نہیں کہ وہ نبیہ ہو سکتی ہے؟ یہ کافی نہیں کہ وہ ایک
एवेंजलिस्ट एक मुबशर हो सकती है, क्योंकि पास्टर का तल्लक इंतजामी अमूर पर है। तो यीशु मसीह ने फौरन पहला जो मनादी का हक दिया, ऑर्डर दिया, वो औरतों को दिया। औरतों को कहा, जाओ जाके मेरे भाइयों को बता दो, जाओ जाके बता दो कि यीशु जी उठा है। यीशु के जी उठने का पहला काम औरतों को दिया गया है। औरतें इतनी हठधर्मी से काम लेती हैं कि जो काम दिया गया है वो नहीं करती, लोगों को कलीसिया में नहीं लेके आती, लोगों को खींचकर दुआ में नहीं लेके आती, उनको टीच नहीं करती, नौजवान लड़कियों को नहीं सिखाती कि किस तरह से अपने हस्बैंड के साथ रहना है, किस तरह से हस्बैंड के साथ ताबेदारी में, इज्जत में, बरकत में, खानदानी जिंदगी में और अज़दवाजी जिंदगी में किस तरह से रहना, वो नहीं सिखाती। उनको बड़ा शौक है कि उनको पास्टर कहा जाए। बाइबल टीचर क्यों नहीं कहलाती, नबिया क्यों नहीं कहलाती, नासे क्यों नहीं कहलाती, यानी कि नसीहत करने वाली। बाइबल कहती है कि जो औरतें जो बड़ी उम्र वाली हैं वो जवान औरतों को सिखाएं। आप जरा अपने दाएं बाएं देखें, हिंदू औरतों को, सिख वुमेन जो हैं, फिर मुस्लिम, उनके ऑनलाइन और बहुत सारे इदारे हैं जहां पर औरतों को सिखाया जाता है दुपट्टा किस तरह से लेना है, अपने आप की, अपने जिस्म की किस तरह सफाई करनी है, अपने हस्बैंड के साथ किस तरह से रहना है। अब हम अपने तरफ देख लें, यहूदियों में बराबर इसी तरह से है। मर्द काम करते हैं, मनादी करते हैं, बिजनेस करते हैं, फौज में हैं, बॉर्डर पे हैं, लेकिन जो सियानी औरतें हैं, जो बुजुर्ग औरतें हैं, वो लड़कियों को बताती हैं। मैं ज्यादा आपको उनके सकाफतो तमदन बता सकता हूं, लेकिन मसला तो यह है कि मेरे बारे में तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो कहते हैं जी ये यहूदियों की तालीम देता है, फिर कहते हैं जी ये पता नहीं बाइबल में से कहां से ये चीजें निकाल के ले आता है। भाई अगर मैं पाकिस्तान से बाहर निकला हूं तो लोग लाखों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं। कोई स्टडी यूरोप जाके करता है, कोई इंग्लैंड जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कनाडा जाता है। कुएं के मेंढक उसी जगह पर रहना पसंद करते हैं, उनको गोते आते हैं, वो डूब जाते हैं अगर समुद्र में चले जाएं या नहर में चले जाएं, क्योंकि उन्होंने कभी पानी इतना देखा ही नहीं है। अब पाकिस्तान की मुसीबत ये है, वो सब कुएं के मेंढक हैं, वो ना सुनना चाहते हैं, ना किसी को सुनाना चाहते हैं, और अगर कोई बता दे उनको कि इस कुएं से भी बड़ी जगह है जहां पानी बहुत ज्यादा है, तो वो कहते हैं नहीं नहीं, हमने कभी हम इस बंदे की बात ही नहीं सुनेंगे। मुझे कईयों ने कहा है, कुछ मेरे दोस्तों ने कहा है कि जी सॉरी, हम आपको अपने चर्च में नहीं बुला सकते क्योंकि हम गुलाम हैं किसी शख्स के। उसने कहा है कि इमैनुअल को चर्च में ना बुलाओ क्योंकि वो यहूदियों की तालीम देता है, वो बिदती तालीम देता है, वो बाइबल से बाहर की बातें बताता है। और भाई यूहन्ना कहता है सब बातें नहीं लिखी गई, अगर लिखी जाती तो जगह ना रहती। तो अगर मैं वो बातें बता रहा हूं जो नहीं लिखी गई, लेकिन हर उस बात का बाइबल के साथ लिंक है, तो फिर आपको क्या परेशानी है? क्या आप चाहते नहीं कि अंधों के घर में कोई काना पैदा हो जाए, या अंधों के घर में कोई दो आंखों वाला पैदा हो जाए? मरासियों के घर में एक काना पैदा हो गया, वो सारे अंधे थे मरासी, उनके घर में एक काना पैदा हो गया। वो अपने बाप को, दादे को, चाचे को, मासियों को, फूफियों को हाथ पकड़ के तो ठोकर लगने से बचाता था। उन्होंने कहा कि इसने तो हमारे रास्ते बदल दिए हैं। उन सब ने, अंधों ने घेर कर उसको पकड़ लिया और उसकी आंखों में मार मार के सुइयां तो उसको अंधा कर दिया।
चलो मैं भी आपका ही हिस्सा हूं, आप ही लोगों में से हूं। अगर मेरी ये आंख कुछ खुल गई है, तो अगर मैं बता रहा हूं आपको कि सही क्या है या तरतीब क्या है, आप मेरे लिए ऐसे ऐसे अदगन लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी रुकावटें कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप गुलामी में ना रहें, आप जो बाइबल कहती है उस तरह करें। अगर पाकिस्तान में इमरान खान शुरू हो गया तो लोग उसके खिलाफ हो गए। अगर इमैनुअल शुरू हो गया मसीही कौम में कि सच्चाई क्या है, तो लोग कहते हैं ये क्या सुना रहा है। मैंने बहुत सारे पादरियों को सुना है, बिशपों को सुना है, नाम नहाद डॉक्टरों को सुना है, नाम नहाद आलमों को सुना है। वो क्या करते हैं, बाइबल का मतन पहले का दूसरे के साथ जोड़ देते हैं, दूसरे का सातवें के साथ जोड़ देते हैं। कोई बयान किसी जगह का है, किसी अंजील में कुछ लिखा है, दूसरी में कुछ है, उसको उसके साथ जोड़ते जा रहे हैं। ओ भाई, इस तरह नहीं होता। हम इतना खर्च करके, पैसा लगा के, टाइम लगा के, अपनी एनर्जी लगा के ये मोती ढूंढते हैं। इसराइल यूनिवर्सिटी से स्टडी की है, यूरोप से स्टडी की है, ग्रीक जानते हैं, अरमिक जानते हैं, अबरानी जानते हैं, अरबिक जानते हैं, उर्दू जानते हैं, थोड़ी बहुत पंजाबी थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत फारसी भी जानते हैं, हिंदी, और थोड़ी बहुत जो कह लें कि वो जो कल्चर है इनका, यहूदियों का जो सिविलियन कल्चर है, वो जानते हैं। वो सारा कुछ हमने खर्च कर करके इकट्ठा किया है ताकि अपने लोगों को बताएं। इमरान खान मुल्क छोड़ के फिर पाकिस्तान आ गया ताकि अपने लोगों को बचाए। आप क्यों नहीं किसी को कबूल करते? नहीं 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 नहीं, हम नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ यही आंखें बंद करके। तो कोई कहता है कि बस बाइबल में ये नहीं लिखा, बाइबल में वो नहीं लिखा। भाई, तुम्हारी तो पंजाबी उर्दू वाली बाइबल में स्टडी नहीं है, आप उसको सही तौर पे स्टडी नहीं करते। कोई इतने सेमिनरीज हैं, उधर नहीं जाते। हर गली मोहल्ले में सेमिनरी बना के बैठ गए, हर गली मोहल्ले में स्कूल बना के बैठ गए। तो क्या करोगे? अंधा अंधे को राह दिखाए, दोनों गड़े में जाएंगे। कचरा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इतना लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। इन की एक एक की जान का आपको खुदा के सामने हिसाब देना पड़ेगा। उनको सही तालीम दें। यीशु मसीह ने जो पुराने अहदनामे में तस्वीर दी गई, नेगेटिव दिया गया, उसकी मुकम्मल पिक्चर अंजीलों में नजर आती है। बाइबल एक खुदा का कलाम है, खुदा एक है, ना वो पुराना है ना वो नया है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। ये इंसानों ने अपने लिए उसके पोर्शन बनाए हैं, इंसानों ने अपने लिए तरतीब बनाई है। तरक्की करें, निकलें बाहर। क्यों लोग टाट वाले स्कूल से निकल के बेंचों वाले स्कूल पे आ जाते हैं, बेंचों वाले स्कूल से निकल के कुर्सियों वाले स्कूल पे आ जाते हैं, और कुर्सियों वाले स्कूल से निकल के ऑडिटोरियम हॉल में आ जाते हैं, ऑडिटोरियम में से आके फिर वो यूनिवर्सिटी जाते हैं, पार्कों में बैठ के स्टडी करते हैं, नहरों पे बैठ के स्टडी करते हैं, कि अलग बैठ के स्टडी करते हैं। क्योंकि उस वक्त तहकीक शुरू हो जाती है, तफ्तीश शुरू हो जाती है, तशखीस शुरू हो जाती है, प्रैक्टिकल शुरू हो जाते हैं, इनकरेजमेंट शुरू हो जाती है, डिबेट शुरू हो जाती है, दलाइल शुरू हो जाते हैं, और फिर उससे नतीजा अख्ज किया जाता है और वो तालीम बन जाती है। आप लोगों ने तो मजाक समझा हुआ है कि डिग्रियां मजाक हैं। अपने साथ बेबाकी के साथ डॉक्टर लिख लेते हैं। कौन सा आपका थीसिस है? किसमें आपने डॉक्टरेट की है? आपका क्या मजमून है? आपने क्या क्या अजाफी किया है दूसरों से? इसलिए इस बात को महलूज़े खातर रखते हुए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने अपने एरियाज में, अपनी अपनी भीड़ों में, अपने लोगों में, अपने स्कूल्स में, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में पौलुस के साथ मिलकर कहें कि हमें अगर ये खिदमत मिली है तो हम हिम्मत नहीं हारते। हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया है और हम खुदा के कलाम में आमेज़श नहीं करते।
ये चंदे, ये चर्च, ये प्लेटफॉर्म, ये क्लर्जी शर्टें, ये टाइटल, सब कुछ इधर रह जाएंगे। लालच में ना पड़े। बलाम लालच में पड़ गया और आखिरकार गधी को जुबान लग गई। अगर आज आप ना बोले तो पत्थर चला उठेंगे। वक्त बिल्कुल करीब है, हलचल मच चुकी है। आप मीडिया पे जाएं, आपको पता चलेगा इस्राएल में आजकल क्या हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि हैकल बने, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम कुर्बानियां दें, वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मसीहा आए। लेकिन जो मसीहा आ चुका है, जिसके बारे में उसने कहा कि जाओ जाके बता दो, और फरिश्तों ने कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो जिंदा हो चुका है। ये औरतों की जिम्मेदारी है, ये कलीसिया की बहनों की जिम्मेदारी है, ये माओं की जिम्मेदारी है, ये नौजवान बेटियों की जिम्मेदारी है कि वो बताएं कि यीशु जिंदा हो चुका है। उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि यीशु के जी उठने की मनादी करें। अंजील ये है, अंजील, अंजील लफ्ज एंजल से निकला है। मां मरियम के पास एंजल आया, उसने अंजील दी कि निजात दहिंदा पैदा होगा, और फरिश्तों ने कहा, एंजल्स ने कहा मरियम को और दूसरी औरतों को कि यीशु जी उठा है। क्या आपके लिए यह काफी नहीं कि जो फरिश्ते कह रहे हैं, जो यीशु कह रहा है कि जाके ये मनादी करो कि यीशु जी उठा है, निजात का दरवाजा खुल गया है, क़यामत का पहला फल हो चुका है। दुनिया में कोई औलिया, पैगंबर, रसूल, रखी सखी कोई नहीं उठा। सबकी कब्रें आज भी टाइटल के साथ मौजूद हैं। ये फलां की कब्र है, ये फलां की कब्र है, ये फलां की कब्र है। आपको खुदा मौका दे और पाकिस्तान की आंखें खुल जाएं कि ये मसीहों को भी इजाजत दें। आप तो कभी उम्रे पे चले जाते हैं, कभी हज पे चले जाते हैं, कभी किसी तरह से चले जाते हैं, लेकिन मसीहों के लिए इनका जोर जब पड़ता है तो सिर्फ मसीहों पे। मसीहों को भी हक होना चाहिए कि वो भी अपने उन तमाम मकाम का सजदा करें, तमाम मकाम को देखें जहां यीशु के पांव लगे, जहां पर उसके मौजज़ात हुए। उसकी कब्र पे मैं गया हूं, मैंने देखा है, लिखा है कि वो जी उठा है। और इसके मुनकर ना यहूदी हैं ना रूमी हैं। उस वक्त की सुपर पावर रूमी थे। लिखने से नहीं बात बनती, उसने साबित किया। 40 दिन मुर्दों में से जी उठने के बाद 40 दिन यीशु मसीह मसरूफ रहा, और वो भी हम आगे ये सिलसिले को लेके चलेंगे। आप जुड़े रहें, दुआ करते रहें और इनकरेज करें बहनों को कि जाओ जाके। तो ये ना कहें कि औरत कलीसिया के मजमे में खामोश रहे। वो मजमा और है, वो इंतजामी अमूर है, क्योंकि औरत की ये प्रॉब्लम है। अगर ये किसी को मशवरा दे दे और कोई दूसरा मान ले तो ये 7 घरों में बताती है, मैंने वो मशवरा दिया था, मेरी वजह से वो तो कोई बोला ही नहीं, उधर किसी को समझ ही नहीं आई। जब मैंने कहा तो सब मान गए। तो ये तो लोगों को बताती फिरेगी कि सारे बेवकूफ बैठे हुए थे। इस वजह से कहा गया कि औरत को कहो कि कलीसिया के मजमे में खामोश रहे। और वो मजमा इंतजामी है, वो मजमा टीचिंग का नहीं है, वो मजमा प्रीचिंग का नहीं है, वो मजमा नसीहत का नहीं है। नसीहत भी करनी है तो बाइबल के हिसाब से करनी है, अंजील की मनादी करनी है तो बाइबल के हिसाब से करनी है, नबिया है तो बाइबल के हिसाब से है। ये नहीं कि वक्री किसी जगह पे अलग बाबा जी बन के बैठ जाए, मोमबत्तियां जला के तो कर रही है तेरे घर में ये है, तो वो वक्री अलग नबूवत शुरू कर दी। ना 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 ना, इस तरह से नहीं है। पखंडी ना बनो, जो बाइबल कहती है उसके हिसाब से चलो, फिर बरकत मिलेगी। क्योंकि खुदा ने अगर औरत को सबसे पहले सजा दी और औरत को ही सबसे पहले निजात की खबर भी मिली,
اور عورت کو ہی یسوع کی خبر دی گئی، اور عورت کو ہی یسوع کے جی اٹھنے کی بھی خبر دی گئی۔ اس لیے عورتوں کا بہت بڑا زمرہ ہے۔ اتنی نازک، اتنی سادی، اتنی معصوم بننے کی ضرورت نہیں۔ جس نے آپ کو اجازت دی ہے وہ آپ سے حساب بھی لے گا، وہ آپ سے پوچھے گا، اور آپ کیا جواب دیں گی پھر؟ لوگوں کو چرچ میں لاؤ، صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں، بلکہ انجیل کی خوشخبری پھیلانے کے لیے کہ یسوع جی اٹھا ہے اور میں اس کی گواہ ہوں۔ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں منادی کروں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی۔